I'm only one, but still I'm one. I cannot do everything, but still I can do something. I will not refuse to do something I can do. This is the beautiful quote of Helen Keller. Now, who wants to share? Yes, it's really wonderful. I was in grade 9th and 10th. I just quoted this in my diary. I wrote it in my diary. That's good, beta. That's good. That's good. So I wrote it in my diary, and it is very inspirational, motivational. What is the lesson we get from this thing? What is the message behind this? Anybody wants to share? Then only one. Day one or one day you decide. Okay, that's good. Your future needs you. Your past does not. Yes, of course. Keep your past in the memories so you learn from your failures. You cannot escape from your past, Peter. Your past always reminds you, yes, go ahead. Now, who will tell me? Is there anyone? Okay, thank you. The in the message in this quote is that, in these words is that, you are a single person, individual. God has given you, blessed you with great, very good. Thank you. I love it, beta. Whatsoever small things we can do, we should not refuse them because God has created you for some special purpose. And God has given you some tasks. The purpose of human, the purpose of giving life is there, and God wants you to fulfill that one. So things you cannot do, all the things you cannot manage, but at least whatsoever you have the ability, God has given you, God has blessed you, something must be done by you. Okay, thank you so very much. Today my lesson is very easy, my dear students. The most easy lesson we are going to do, and the very short one. Take your pencils in your hands. Right now I'm going to start with the Urdu one, because in English, when I just looked at the new version, because I always, when I prepare my lesson, I always go through the text given in your Urdu new version. And if it is according to the book, then I start with the English. So kindly share the screen, the second one. Today I'm going to start the Constitution of 1956. 1949 was the base. Good, beautiful. That is the very positive approach, Beta, in this quotation. Thank you, Beta. Now look at the screen. Sir, just kindly share the screen of the Urdu one. The next one? Yes. Now see the salient feature I have written. If you zoom, the Constitution of 1956, salient features, written Constitution, preamble. Preamble means preface, introduction, flexible Constitution. So far, beta, I'm unable to get. As soon as I will get the new version, I will definitely send you through the WhatsApp group. So the previous one. It is in your book, it is very, very long. It is very, very long. It has got 11 points, but in Urdu, they have shortened the words. That's why I'm going to start with the Urdu. So third screen. Third screen is about the Constitution. I have given you the short points of that one, but I'm going to read it from the Urdu. Okay, you can listen, beta. करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद इस बात का यकीन तो हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा. करारदाद मकासद 1949 by लियाकत अली. हाँ, sorry, let me drink water and then I will... Just give me, I'm just joking, beta. Let me drink.
की मंजूरी के बाद इस बात का तो यकीन हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए वफाकी असेंबली के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई। मगर आज़ादी के फौरन बाद ही पाकिस्तान ऐसे बेशुमार मसाइल का शिकार हो गया कि दस्तूर साजी पर भरपूर तवज्जो ना दी जा सकी। Remember 1949 objective resolution, we are talking about the first constitution 1956। तो उस दौरान वो जो मसाइल थे 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही फॉलो किया गया। बकायदा एक जो कानून था, एक आइन था, वो ना बनाया जा सका। सियासी अदम इस्तेकाम, स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबिलिटी थी, सियासी अदम इस्तेकाम और नाअहल क़यादत, लैक्स ऑफ गुड लीडरशिप की वजह से हुकूमतें तेजी से तब्दील होने लगी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नजर आइनसाज असेंबली 24 अक्टूबर 1954 को जो थी असेंबली तोड़ दी गई। हालात स्टेबल नहीं हो रहे थे, अच्छी लीडरशिप नहीं थी, सो थिंग्स वर नॉट स्टेबल और नई असेंबली के क्याम का ऐलान किया। दस्तूर साजी की राह में हाई रुकावटों में एक अहम रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों, मगरबी हिस्सा कौन सा था? वेस्टर्न पार्ट था बेटा। वेस्टर्न पार्ट जो था उसमें आपके 4 सूबे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। अगर आप इंडिया का मैप दें तो इंडिया इज टुवर्ड्स आवर ईस्ट। जब डिवीजन हुआ तो इंडिया के अगर आप ड्रॉ करें लाइन और उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे के, तो जो इंडिया की डिवीजन हुई उसके वेस्ट पे जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो कौन सा था? शमाल मगरबी हिस्सा कंसिस्टेड ऑफ 4 प्रोविंसेस। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आपका बांग्लादेश जो अब है। मशरकी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रुकावट को अब टोटल कितने सूबे हो गए? 5। 4 सूबे मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी हिस्सा, तो टोटल 5 हो गए। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट का मतलब एक ही यूनिट, नो मोर प्रोविंसेस। 1 यूनिट का मतलब 1 and there are no more 5 provinces। 1 यूनिट के क्याम और आइन साज असेंबली के इंतखाबात के बाद दस्तूर साजी का काम काफी हद तक आसान हो गया। नौ मुंतखब वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम की तरफ तवज्जो दी और उसे मुकम्मल किया। वफाकी असेंबली ने नए आइन की मंजूरी दी। जो आपकी वफाकी असेंबली थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरल जो मिनिस्टर्स थे जो उनकी सेंट्रल असेंबली थी, उसने उसे पास किया और उसकी मंजूरी दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट 1956 की आप देखो, अगर बुक आप इफ यू विल सी द बुक इन द इंग्लिश तो आपके पास 11 लॉन्ग क्वेश्चंस है, लेकिन इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि उर्दू में आपके पास 8 सिलेक्ट 8 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफज किया गया। प्लीज योरसेल्फ। पाकिस्तान का पहला आइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यू में आ सकता है। पहला आइन 23 मार्च, देखिए 23 मार्च याद रखिएगा। आपका पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 और 23 मार्च को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 में। सो डे और मंथ आपको याद रहेगा। 1956 वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस आइन की हम खसूसियात दर्ज झेल हैं। बिल्कुल सेम चीजें आपको नजर आएंगी जो आपने 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पढ़ी थी, सिर्फ 1-2 पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। नंबर 1 पॉइंट, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री थी। मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। पार्लिमानी जो निज़ाम है, पार्लियामेंट हुकूमत जो होता है फेडरल में, सेंट्रल और बाकी जो सूबों के पास जो अथॉरिटी है। अब जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर जो है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के जिम्मेदार हैं। द प्रेसिडेंट हैड नॉमिनल पावर्स, थोड़ी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। द रियल पावर्स रेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। और किसके पास ज्यादा पावर्स होंगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नंबर 3 पॉइंट, आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत और इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल। कल जो पढ़ाया था मैंने, sovereignty belongs to Allah and man's will be the deputy and they will be given limitations. They will
exercise their power in the limits. और वो कौन सी limits हैं, किसने limits draw की हैं? वो अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का माहौल, इकलियतों को मुकम्मल आजादी, मजहबी और आजादी देने का ऐलान किया गया। फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो थे वो दिए जाएंगे और सिक्योरिटी टू द मिनॉरिटीज। ये भी आपका कल का जो है वो रिकॉल कर रहे हैं आप। आइन में इस बात की निशानदेही कर दी गई कि शहरियों को बेहतर जिंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों का स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सलाहियतों के इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक फराहम किए जाएंगे। दीज आर योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आइन में कहा गया कि ये दिए जाएंगे। इस बात की जमानत फराहम की गई कि अदलिया अपने फराइज की अदायगी के लिए तमाम दबाव से आजाद होगी। yesterday we read independence to judiciary, किसी किस्म का जजेस पे दबाव नहीं होगा। आला अदालतों के जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाएगी उन्हें। और आपने कल पढ़ा था कि हाई पेड जो थी सैलरीज से, दे विल बी पेड इन विद हाई सैलरीज। अब यहाँ ये जो नया पॉइंट है 1956 के वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दे। इट इज इन 1949 आपने कल पढ़ा था Urdu will be the national language. Now here what are they saying? 1956, in the constitution of 1956 it was decided Urdu and Bangla or Bengali जो थी, they will be the national language of Pakistan. 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया, ये नहीं कि रोज का एक आइन बना लिया लॉ। इट वॉज इन द रिटन फॉर्म। अब आप देखो, आई हैव शोन यू इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. It is in the form of a book. Each and every department of life, area of life is given some kinds of law. उन्हें अपनी limitations दी हैं, and it is in the form of a book. अब इसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा बेटा, आइन की मनसूखी से प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आइन की मनसूखी इंग्लिश में कहते हैं एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब है मनसूख कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या हो गया, क्यों तोड़ दिया गया आइन? 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था। हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? 9 years, full 9 years, 9 साल में बना। मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की बाहमी चपलिश का मतलब है आपस के डिफरेंसेस। यस बेटा, 9 years आपस के लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस जो थे। जमहूरी इदारों में फौज और ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी बेटा वो होते हैं जो आपके इनको उर्दू में नौकरशाही कहा जाता है। परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, बनते हैं, उसके बाद वो उनका टेन्योर, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। जो गवर्नमेंट के अदारे चलाते हैं उनका जो है वो रिटायरमेंट पे ही उन्होंने जाना है। तो ब्यूरोक्रेसी में वो अफराद आ रहे थे, जैसे आपका एफबीआर का दायरा है, नैब का दायरा है। इसके अंदर जो अफराद, जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद ही वो दायरा छोड़ते हैं। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ नजर आती है, इफ दे आर फाउंड करप्टेड, कभी पनिश मिल जाती है, कभी सस्पेंडेड, बट दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिशियंस जो है वो आते जाते रहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि फौज और ब्यूरोक्रेसी की बेचा मुदाखलत, आला क़यादत का फुकदान, लैक ऑफ गुड लीडरशिप और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेचा। अब गवर्नर जनरल कौन है? प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री निजाम में जो प्रेसिडेंट है नॉमिनल पावर्स है, ज्यादा पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं हमें? एक रीजन दे रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट था उसकी भी बेचा मुदाखलत थी, लॉट ऑफ इंटरप्शन जो थी उनकी तरफ से थी, इंटरवीन कर रहे थे। तो बेजा मदाला मनमानी ने आइन को ज्यादा देर चलने ना दिया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 का ये आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद यूबा ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत डेमोक्रेसी को खत्म करके बरतरफ कर दिया और बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी। तमाम इख्तियारात खुद संभालिए, ऑल द पावर्स। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अब खत्म होगी। नो मोर असेंबलीज, नो मोर पॉलिटिशियंस,
सिर्फ कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खां थे। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मंसूख कर दिया, तोड़ दिया, एब्रोगेट कर दिया। तमाम वफाकी और सूबाई असेंबली, सेंट्रल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज वर डिसमिस्ड, डिसॉल्व, और खुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का उख्ता संभाल लिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में इसी का आपने इंग्लिश की अब आप बुक खोल लें। आई विल जस्ट फिनिश इट इन द लास्ट पेज। अब आपके इंग्लिश का है पेज 106, पेज निकाल लीजिएगा। आई विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स टू रीड दैट वन। ठीक है, आप लोग एक पढ़ लीजिएगा, उसको निकालिएगा। Last point, page number 106, abrogation of the Constitution. The Constitution of 1956 was passed after long and untiring efforts of 9 years, but did not last for a long. Proved to be short-lived due to the specific circumstances of Pakistan, which included mutual differences, quarrel of the politicians, unfair interruption of the army and bureaucracy in democratic institutions. Sir, last slide होगी क्योंकि दोनों उसी में दिए हुए मैंने। अब वो क्या कह रहे, अनथक मेहनत से बना था, 9 years की कोशिश से बना था। व्हाट वाज द रीजन? नंबर 1 पॉइंट आप इसका रीजन क्या देंगे? व्हाट वाज द रीजन? नंबर 1 लिखिएगा, थर्ड लाइन, म्यूचुअल डिफरेंसेस, आपस के इख्तलाफात थे, चपलिशें थी, क्वारल्स ऑफ द पॉलिटिशियन, लड़ाई झगड़े थे, अनफेयर इंटरप्शन था, बेचा मुदाखलती किसकी? फौज और ब्यूरोक्रेसी की। इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बेजा मुदाखलत आ गई। What is the third point? Number 1 point आपका रीजन क्या है? म्यूचुअल डिफरेंस। नंबर 2 पॉइंट है quarrels of the politician. नंबर 3 पॉइंट है unfair interruption of army bureaucracy in democratic institution. Number 4 point, lack of the able leadership and high handedness of cover. High handedness, democratic बेटा जमहूरी, जमहूरी अभी उर्दू में मैंने सारा आपको पढ़ाया है, सेम उसकी ट्रांसलेशन अब मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। handedness of बेचा मुदाखलत of governor general in the affairs of the government. Now 4-5 reasons are there why General Ayub Khan abrogated the constitution. So these are the answers of this short question. Very important last paragraph, इसको तो पूरा bracket कीजिएगा, put a bracket around it, lots of short questions and MCQs. Number 1, इसको आप कर लें, the constitution of 1956 remained implemented for 2 years and 7 months. What is the duration? 2 साल 7 महीने, 2 years 7 months. In October 1955, then उस लम्हे के, तब के, then commander in chief of army of Pakistan, Army General Muhammad Ayub Khan dismissed, dissolved, mansook कर दी, तोड़ दी, the government and set up in military regime. Military regime का मतलब है regime means rule in the country. He assumed, concentrated, assumed, concentrated means handle, occupy कर ली, tackle किया, take up, took up the powers in his hands. तमाम इख्तियारात अपने पास ले लिए. What were the जो थी इख्तियारात क्या थे? Being the president or prime minister of Pakistan. So he abrogated the constitution of 19. Who abrogated the constitution? Who abrogated the constitution? General Muhammad Ayub Khan. So ये short question आ जाता है, reason आ जाते हैं, date आ जाता है, time period आता है. There are 3-4 short questions plus MCQs. He dissolved all the assemblies. Dissolved, dismiss कर दी, मंसूख कर दी, तोड़ दी. He dissolved all the assemblies, national assembly as well as the provincial assemblies. सूबाई और जो मरकज की assemblies थी वो सब तोड़ दी. He took over the charge of the office as president. ऑफिस किसका लिया? कौन सा ओहदा? ऑफिस जहां पर ओहदा है. He took the office of president and the chief martial law administrator. Up till here, beta, this is all for today. Thank you so very much for being with me. This is the most easy question you people have taken. Now I have got 42, in which 42, I think, sir, look at Muhib Waris is the last person with me. No.